classical means Roman and Greek classical. Then this was also the era of the Enlightenment. Okay, देख लीजिए the neoclassical period 1660 to 79, also known as the Enlightenment era. Okay, if you want to say something, then open your mic. Otherwise, mute your mic. Okay. Now, was a cultural intellectual movement that emerged in Europe in the 18th century. It is important for you that's any means if you asking that question that a neoclassical period in a which century related, then 18th century. Okay. Now it was characterized by, just wait. It was characterized by a renewed interest in classical learning and a rejection of the ornament. It's the most important fact in a which periods reject the Baroque style, then neoclassical period. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर पूछ लिया जाए कि किस पीरियड में ओके या किस एज में बैरिक स्टाइल को रिजेक्ट किया या नियो क्लासिकल पीरियड में किस स्टाइल को रिजेक्ट किया गया तो क्या होना चाहिए बैरिक स्टाइल of a previous century. Next देखते हैं during this period there was a focus on a reason, science and progress. Actually those time you know like many revolts and even you can say that many changes came day by day and all persons or peoples are very aware about the society, so only focused on the reason and science and progress. Okay, not only focused on a religion or church or pope. ओके मीन्स वो लोग चाहते थे जब इतने ज्यादा रिवोल्ट हो चुके थे तो जनता जो थी जाग गई थी, वो जान गई थी कि हमें तार्किक होके सोचना पड़ेगा, हमें साइंस चाहिए, हमें प्रोग्रेस चाहिए, हमें उन्नति चाहिए. ठीक है, तो उस पीरियड में इन सब चीजों पे फोकस किया जाने लगा. एज थिंकर as thinker and artist sought to apply the principle of enlightenment of all aspects of society. And now next, the philosophy of enlightenment emphasized the individualism, liberty, and pursuit of knowledge. And it had a significant impact on politics, इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर. मेन उनका मोटो हो गया था ह्यूमैनिटी को के बारे में सोचना. ऐसा समझिए ओवरऑल न्यू क्लासिकल पीरियड में मानवता को, जैसे कोई भी रूल जो परंपरागत चीजें बनी हुई है उस रूल से किसी मानव को कोई हानि हो रहा है या उससे कोई भी पर्सन, कोई भी समाज का प्राणी उससे मतलब जैसे समझिए कि प्रताड़ित हो रहा है, तो उस रूल को वायलेट करना, उस रूल को हटाना और प्रेजेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल को अप्लाई करना, ये उस टाइम पे था. तो ऐसा समझिए कि मानवतावादी विचारधारा को उस समय पे डेवलप कर दिया गया. ओके एंड अगर ऐसे समझा जाए कि उस टाइम पे लाइफ ऑफ दिस एज इज कंसर्न विद द ह्यूमन नेचर एंड सुप्रीमेसी आर रीजन. ओके मतलब तर्क की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके थे. एंड आगे देख लेते हैं. In literature, the neoclassical period is known for its emphasis on clarity, reason, and rationality. Writers during this period sought to create works that were simple, direct, and accessible to a wide audience. मतलब जो बहुत जैसा हमने बताया कि बैरक स्टाइल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऑर्नामेंटल स्टाइल था, तो वो चाहते थे कि हमारे लैंग्वेज के साथ थोड़ा सिंपल हो, डायरेक्ट हो और बहुत ज्यादा ऑडियंस के रीच पहुंचे, मतलब बहुत ज्यादा ऑडियंस के बीच में पहुंचे, ज्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंचे. ठीक है, they rejected the elaborate ornament style of the Baroque period in a favor of a more straightforward approach and drew inspiration from the classical works of ancient Greece and Rome. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि नियो क्लासिकल पीरियड में, ठीक है ना, किसका रिवाइवल हुआ, तो क्या होना चाहिए ग्रीक और रोम का. जो एक्चुअली जो हमारा लिटरेचर था, ओल्ड लिटरेचर अगर देखा जाए तो रोमन्स और ग्रीक से ही हुआ है. ठीक है, देन राइटर ऑफ दिस डेज ट्राइड टू इमिटेट द स्टाइल ऑफ द रोमन्स एंड ग्रीक. सो this question is the most important for us. And if this type question make in the examination among neoclassical form of literature and most famous were the dramas, essay, both in verse and prose. In which genre? Then comic and satiric.
ठीक है, उस टाइम पे कॉमिक और सटारिक को ज्यादा प्रेफर किया था, इस जॉनरा को ज्यादा आगे लिया जा रहा था, मतलब मीन्स उसको बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा था। आगे देख लेते हैं, न्यू क्लासिकल पीरियड इज अ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। कितने पीरियड में डिवाइड किया गया है? 3 पीरियड में। पहला पीरियड क्या आता है? पहला पीरियड आता है रेस्टोरेशन पीरियड या एज ऑफ ड्राइडन पीरियड। ये देखिए स्क्रीन पे आप सबके दिख रहा होगा। यस, हमारी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है? यस, रिप्लाई मी एनीवन? यस मैम, यस मैम, ओके जी, एवरीथिंग इज पहला, क्लियर। ओके, पहला पीरियड आता है रेस्टोरेशन पीरियड, एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया, रेस्टोरेशन पीरियड इज आल्सो नोन एज एज ऑफ ड्राइडन। ओके, नाउ द पीरियड्स स्पैन क्या होना चाहिए? 1660 टू 1700, 1660 से लेकर 1700 तक का जो पीरियड है वो एज ऑफ ड्राइडन माना जाता है या रेस्टोरेशन पीरियड बोला जाता है। ओके, अच्छा, इस टाइम पे किसका शासन था? फटाक से बताइए। चार्ल्स चार्ल्स सेकंड, सेकंड। चार्ल्स चार्ल्स का था, सेकंड। जिनकी कोरोनेशन वेरी पर जॉन ड्राइडन ने एक पोइम लिखी थी, आस्टीरिया रिडक्स, क्योंकि ये भाई साहब वेरी उन्हीं के गुणगान नाइस थे जो सत्ता में होते थे। जिधर जी, इन्होंने पल्ला भारी देखा उधर पलट गए ये। बहुत अच्छे। और ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऑस्ट्रिया रेडक्स जो था ये किसके कोरोनेशन पे लिखा गया था? चार्ल्स सेकंड पे। नेक्स्ट आता है एजा पॉप आर अगस्टाइनीज। अगर पूछ लिया जाए, इसको भी इस तरीके 17। से पूछ लिया। यस, नो नो कोई मैम। पूछ? ओके ओके, अगस्टिन एज को किस नेम से जाना जाता है? तो एजा पॉप के भी नाम से जाना जाता है। तो 1700 टू 1745 एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन 1745 टू 1785, सॉरी 84। ओके, या जैसा अभी हमने बताया 84 भी जानिए और आगे इसको 98 तक इसे ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? द पीरियड बिगन विद द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड। जब गद्दी बैठते हैं तभी से ये पीरियड स्टार्ट होता है, रिस्टोर होता है, मोनार्क रिस्टोर होता है। ठीक है, एंड विच मार्क द रिटर्न ऑफ द मोनार्की आफ्टर द प्यूरिटन कॉमनवेल्थ पीरियड। And now this period was marked by political and social instability, and the monarchy sought to re-establish order and stability. The monarchy also sought to emulate the classical values of Greece and Rome, leading to a renewed interest in classical literature, philosophy and art. जैसे बोलते हैं ना कि वही चीजें जो पास्ट में स्टाइल हमारी छुटी रहती है उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, चाहे वो कपड़े का स्टाइल हो, चाहे कोई भी चीज हो, वही पुरानी चीजों को नए तरीके से मोड़ के पेश कर दिया जाता है। तो वही चीज इस टाइम पे भी हुआ, मतलब रिस्टोरेशन पीरियड में यही चीजें देखने को मिली थी। आगे देख लेते हैं, हु आर द इम्पोर्टेंट रूलर्स। तो पहले कौन आ जाएंगे? चार्ल्स सेकेंड आ जाएंगे, जो 1660 से 1685 तक आते हैं, वेल नोन है। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से कल पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किंग जेम्स सेकेंड। ये इनके भाई थे, किसके? चार्ल्स, जो चार्ल्स सेकेंड थे इन्हीं के ब्रदर थे। देखिए, जेम्स जेम्स सेकेंड सक्सीडेड हिज ब्रदर चार्ल्स सेकेंड as a king, but his Catholic faith and effort to promote religious toleration led to his overthrow in the ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ? 1688, और इन्हीं के बेटी दामाद थे। ठीक है, इन्हीं के बेटी और दामाद थे, इन्होंने ही रिवोल्ट किया था जनता के साथ मिल करके, और इनको गद्दी पे, जब इनको लगा कि मेरे ही बेटी दामाद गद्दी पे बैठेंगे तो आराम से छोड़ के चले गए। आगे देख लेते हैं, तो तीसरे मोनार्की कौन आता है? विलियम थर्ड। इन्हीं को ही बोला जाता है विलियम द ऑरेंज। याद रखिएगा, विलियम द ऑरेंज के नाम से कौन जाना जाता है? विलियम द थर्ड। ओके, एंड मैरी सेकेंड his spouse. Okay, and 1689 to 1702. Following the Glorious Revolution, William III and Mary II were crowned joint monarchs. अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ज्वाइंट मोनार्की किस टाइम में आया था, तो किस टाइम में आना चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए, किस टाइम में होगा? ये हो जाएगा रेस्टोरेशन पीरियड में। ठीक रेस्टोरेशन है, पीरियड में। हाँ जी, रेस्टोरेशन। यस, ये यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से क्रिएट कर दिया गया कि ज्वाइंट मोनार्की किस पीरियड में देखने को मिला था, तो रेस्टोरेशन पीरियड में। और कौन बैठा था? विलियम थर्ड या विलियम द ऑरेंज एंड मैरी सेकेंड।
They oversaw a period of political and cultural stability which helped to foster the development of neoclassical literature. Now, क्वीन एन इनकी सिस्टर ही थी, जो आती हैं गद्दी पे कब बैठती हैं 1702 to 1740. Queen Anne was a patron of arts and supporter of neoclassical literature. During her reign, the novel emerged as a popular literary form with works like Daniel Defoe's का Defoe का क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो है, और सैमुअल रिचर्डसन का पामेला है, बहुत पामेला। इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये पामेला का जो जॉनरा है क्या बोला जाता है, एपिस्टोलरी स्टाइल माना जाता है ना। ये क्वेश्चन एपिस्टोलरी नॉवेल, नॉवेल, एपिस्टोलरी हाँ नॉवेल, डॉक्यूमेंट्री नॉवेल, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट नॉवेल देखते ऑफ हैं, लेटर। यस, फिफ्थ मोनार्क जॉर्ज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ऐसा नहीं यही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नहीं नहीं, जॉर्ज करके फर्स्ट आते हैं, फिर जॉर्ज सेकेंड आते हैं, फिर जॉर्ज थर्ड आते हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1740 to 1820. The reigns of the three Jars marked a period of continued cultural development in the England, with writers like Alexander Pope, Jonathan Swift, and Samuel Johnson producing works that reflected the values and ideals of the neoclassical period. आगे देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, आगे देख लेते हैं। Who are the notable writers and their works of this age? इस टाइम के नोटेबल राइटर कौन थे? तो ये चीर परिचित है हमारे, जॉन मिल्टन। इनका जो पैराडाइज लॉस्ट है 1667 में आता है, कितने बुक में आता है? पहले 10 आता है 10 बुक्स में, 12 लेटर yes. ऑन आता है 12 बुक्स में, नहीं, बस 74 इतना में, ही, 12 देखिए बुक्स में। जितना क्वेश्चन, हाँ, फिर आता है जितना 16 क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर देंगे तो मजा आएगा, क्योंकि हमें पता है इजी क्वेश्चन है, सबको रट्टा पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन परेशान करते हैं एग्जाम में, हमें पता रहता है 12 पैराडाइज लॉस्ट है 12, और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो वो 12 का 10 समझ ही नहीं आता, ठीक है। आगे देखते हैं, पैराडाइज रिगेंट ये कब आता है, 1671 में, कितने बुक में आता है, 4 बुक में। बुक्स में आता है। यस, सैमसंग एगोनिस्टस कब आता है, 1671 में आता है। 71। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉन ड्राइडन एब्सलम एंड एचेटोफेल 1681 में आता है, मैट फ्लैकनोई फादर ऑफ 1680। क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट आता है मैम, द, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो तो बोलिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं या फादर आप ऑफ लोग कुछ इंग्लिश, जस्ट फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है इन्हें। ओके ओके, जॉन, यस यस यस, जॉन ड्राइडन, जी, यस। यस Okay, मैम। Hind and the Panther is a most important work. Okay, 1687, John Dryden. Now Alexander Pope, Essay on Criticism, 1711. The Reap of the Lock, important, 1712. In Essay on Man, 1734. Now Jonathan Swift, A Modest Proposal, 1729. And Gulliver Travels, important work, 1729। ऐसे पूछ सकता है कि गुलिवर ट्रेवल्स किसका है, जोनाथन स्विफ्ट का है, क्योंकि कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसमें राइटर्स को पूछा जाता है। द बैटल ऑफ द बुक 1704, सैमुअल जॉनसन। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में बहुत अच्छे से आप लोग को पता होगा कि कौन से ऐसे राइटर थे जिनकी वाइफ उनसे 8 साल बड़ी थी, फटाक से बताइए। शेक्सपियर। हाँ, और कौन से ऐसे राइटर हैं जिनकी वाइफ उनसे 30 ईयर बड़ी हैं, कोई रिकॉल करके बता सकते हैं? हाँ, नहीं 20 ईयर, सॉरी 30 नहीं, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, यस। तो ये थे हमारे सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ऐसे थे जिनकी वाइफ इनसे 20 साल बड़ी थी, ओल्डर देन 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम इन एज, ओके, बिकॉज ही मैरिड विद अ विडो, एक विडो से शादी किए थे जिनका नाम था एलिजाबेथ जॉनसन। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर तो वेल नोन है, सबको पता है, लेकिन जॉनसन भी ऐसे थे, और ये थोड़े से ये इनकी किसी से बनती नहीं थी बिकॉज इनको एक डिजीज था, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हम इसे बोल सकते हैं कि हॉटी नेचर का नेचर के भी थे, ये बहुत ही रूड थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सच में ऐसे थे, इनको एक डिजीज थी, एक बीमारी थी जिसकी वजह से ये ऐसे थे। आगे देख लेते हैं, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टिक। इनका वर्क भी आप लोगों ने यल्ट्री अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, स्पेक्टेटर 1711 to 1712 एंड द टैटलर 1709 to 1711। आगे देख लेते हैं हम लोग, यस।
जनरल जेफ्यूक अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, रॉबिन्स क्रूसियो एंड मॉल फ्लैंडर्स एंड जनरल ऑफ द प्लेग ईयर, ये इंपॉर्टेंट है 1712। नेक्स्ट आता है सैमुअल रिचर्डसन, पामेला, अभी जस्ट इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। क्लैरिसा, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैडिसन 1753। नेक्स्ट आता है विलियम कैंग्री, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है लव फॉर लव 1695 में आता है। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। विलियम कैंग्री का लव फॉर लव है। द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में आता है। जॉन गे का क्या है, द बेगर्स ओपेरा, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1728 में। एंड ट्रिविया आता है 1760, फेबल्स आता है 1727। नेक्स्ट आता है लॉरेंस स्ट्रॉन्ग, द लाइफ एंड द ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रैम शैंडी जेंटलमैन एंड सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखिएगा। ओलिवर गोल्डस्मिथ, इनका है द विकार ऑफ वैकफील्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। शी स्टूप्स टू कंक्वायर 1773 एंड द डेजर्टेड विलेज 1770। नेक्स्ट आता है हेनरी फील्डिंग का टॉम जॉन्स एंड जोसेफ एंड्रयूज एंड अमेलिया, ये इंपॉर्टेंट है 1751 में आता है। नेक्स्ट आता है, ये देखिए एडवर्ड गिब्बन का क्वेश्चन पूछा जाता है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये वर्क किसका है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो किसका है, एडवर्ड गिब्बन का है। एंड लास्ट देखते हैं क्रिस्टोफर स्मार्ट, जुबिलेंट एंगो, रिटन इन 1759 एंड 1762। आगे का सेशन लिटरेरी डिवाइस हम लोग कल कवर करेंगे। यहाँ तक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो बता सकते हैं। यस